Hello dear students, welcome on my channel. You are studying differentiation. Now see question number 2, sub question 6th. Let y equal to 5 raised to sine cube x plus 3. You have to differentiate this question with respect to x. If y equal to 5 raised to sine cube x plus 3, so what should you do in the first step? Now see this step carefully. It is 5 raised to sine cube x plus 3. Whole thing is in the index. So after this step, we should take the formula first. What is the differentiation of a to the power x? Differentiation of a raised to x equal to a raised to x into log of a. So you can differentiate this question by that formula. So we write here differentiating with respect to x, we get dy upon dx, which is derivative of y, equals 5 raised to sine cube x plus 3 into log of 5 by formula multiplied by d by dx of sine cube x plus 3 by composite function. So it can be written as 5 raised to sine cube x plus 3 as it is into log of 5 into d by dx of sine cube x. So derivative of sine cube x you know very well, it is 3 sine square x into d by dx of sine x by composite function again, and derivative of 3 only is 0 because of constant. Here 3 is constant, so you can say derivative of 3 with respect to x is 0, and derivative of sine cube x, that is sine x the whole cube. So you can apply the formula for differentiation of x raised to n, means d by dx of x raised to n equals n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1, that is 3 sine square x here. So 3 sine raised to 3 minus 1 becomes 2, and here 3 sine square x into d by dx of sine x by composite function because of formula, and derivative of 3 is 0. जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो कि कंप्लीटली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसको हमें जब तक एंड प्रोसेस तक हम लोग उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल लेते तब तक उसका कंपोजिट फंक्शन टर्म बाय टर्म कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो, पहले 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट किया गया, तो इट इज 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, फर्स्ट टर्म विल बी सेम, इनटू log ऑफ 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, और फिर इनके पावर का डेरिवेटिव करने में हमें ये मिला कि 3 साइन स्क्वायर एक्स आने के बाद ये साइन एक्स का डेरिवेटिव वापस बाय कंपोजिट फंक्शन एंड कांस्टेंट टर्म का हो गया 0। तो अब हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो इट कैन बी रिटन एज 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनको रीअरेंज करते हैं। नाउ रीअरेंजिंग वी गेट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो log 5 एंड 3 ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं और ये एक्सपोनेंशियल टर्म में आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसका जनरल फार्मूला जनरेट करते हैं कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू कैन से जनरल फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ a raised to fx. So derivative of a raised to fx is what? So derivative of a raised to fx equal to a raised to fx into log of a, means this constant logarithm के साथ, into d by dx of fx, या उसी को हम लोग बोलते हैं f dash x। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, नोट कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ a raised to fx equal to a raised to fx into log of a into f dash x. So actually f dash x is known as d by dx of fx, means differentiation of fx with respect to x, और यहाँ पर d by dx of a raised to fx, तो यही जो fx है यहाँ पर ये हमारा टर्म है साइन क्यूब x प्लस 3। अब देखो ठीक इससे कंपेयर कर सकते हो कि जैसे ही हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चालू किया था, यहाँ से ये है एफ एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3,
तो ये पार्ट हमारे पास सेम टू सेम आया था। ए रेज टू ए का वैल्यू यहाँ पर है 5 और एफ एक्स है साइन क्यूब एक्स प्लस 3, तो 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू, अब देखो लॉग ए मीन्स यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर बेस में कांस्टेंट रखा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाता है, तो लॉग ऑफ ए। हाँ ये ध्यान रखना कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट लेस देन 0, दोनों ही केसेस यहाँ पर ध्यान देनी है। इंटू एफ डैश ए, जो यहाँ पर हमें रिपीटिशन में डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, विच इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन इन द डेरिवेटिव केसेस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7th। तो 7th क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लेकर आया है कि लेट y इक्वल टू कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स, कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स, जैसे हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा, तो व्हाट इज थीटा हियर, रूट ऑफ कॉस एक्स, थीटा क्या है, रूट ऑफ कॉस एक्स, तो यहां पर हो गया लेट y इक्वल टू कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, तो ये रूट कॉस एक्स को हम लोग इसका एंगल पकड़ेंगे और कंटिन्यू इसको डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और हाँ एक चीज और, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट सोचते हैं कि दिस क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट, व्हाट इज द फार्मूला, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, सब थिंकिंग आ जाती है दिमाग में कि, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस क्वेश्चन इज सो इजी, डिफरेंशिएट इट टर्म बाय टर्म, देन यू कैन गेट योर करेक्ट आंसर फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। जैसे मान लो कि अभी ओनली होता कि y इक्वल टू कोसेक एक्स, राइट, तो जैसा कि फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज व्हाट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ठीक वैसे ही हम लोग इसको थोड़े सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए x अज्यूम कर लेते हैं, थिंक एज x, थिंक एज x एंड राइट डाउन द सेम वैल्यू वेयर इट इज x। तो करना क्या है यहाँ पर, चलो हम लोग फ्यू सेकंड्स के लिए अज्यूम कर लिए कि होल क्वांटिटी एज x, तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y dy upon dx इक्वल्स, अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला मींस d by dx ऑफ कोसेक, अगर हम इसको x अज्यूम कर चुके हैं तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, बट इट इज नॉट x, so write the value of, write the real value here, root of cos x, so we get here minus cosec root cos x into cot of root cos x, ये हो गया। तो ये इतना पार्ट हमारा ये फार्मूला से आ गया यहां तक, इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये टोटल पार्ट यहाँ पर, ये इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, ये हमारा पार्ट आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे फिर यहाँ पर, अब ये एज इट इज ऐसे एंड तक रखना है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से सिंप्लीफाई हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं, और अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस उसी फंक्शन में रखते जाएंगे कि कंटिन्यूअस यही स्टेप है। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूले से माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स, अब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज रूट एक्स कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो फर्स्ट you should note down the formula d by dx of root x means differentiation of root x equal to 1 upon 2 root x. Okay, now get the next step, it is equal to minus cosec root cos x into cot root cos x, derivative of root cos x is 1 upon 2 root cos x. By chain rule we should take the derivative d by dx of cos x again. So derivative of cos x is minus sin x, we write here. So we get here dy upon dx equals minus cosec root cos x into cot of root cos x multiplied by 1 upon 2 root cos x into डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x। मीन्स एक तरह से कर सकते हो कि जो डेरिवेटिव जिसका हो गया उसको एज इट इज रखते जाना है, और जिनका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस में आगे बढ़ाना है उनके फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो अब ये फाइनल आंसर के लिए क्वेश्चन रेडी है, तो यू कैन राइट इट एज dy अपॉन dx इक्वल्स, अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, नेगेटिव साइन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस। तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स, वी राइट दिस टर्म फर्स्ट, साइन एक्स
इंटू कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स अपॉन 2 रूट कॉस ऑफ एक्स। अब ऐसा कोई नहीं सोचना कि ये रूट कॉस एक्स गेट कैंसल्ड, इट इज एन एंगल और ये कोसेक एक्स के अंदर ये पार्ट है, जैसे कोसेक थीटा, हम थीटा को नहीं कट कर सकते किसी भी केस में। सिमिलरली यू कांट कैंसल रूट ऑफ कॉस एक्स बाय दिस रूट कॉस एक्स और दिस, तो इसको किसी भी वे में कैंसिल नहीं किया जा सकता एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ अगर इसका हम लोगों को जनरल फार्मूला क्रिएट करना है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला, क्रिएशन ऑफ जनरल फार्मूला, हाउ विल यू सिंप्लीफाई विदाउट लर्निंग द फार्मूला। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एफ एक्स इज माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स, जो कि यहां पर लिखना चाहिए था, यहां पर माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ एक्स, क्योंकि दिस इज एफ एक्स। अब ये एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें फिर से निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी नोट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर होना चाहिए। तो ये डेरिवेटिव नोट करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटू एफ एक्स कंटिन्यूस ले लेते हैं। तो ये एफ एक्स यहाँ पर डाउनलोड कर देते हैं कि यहाँ पर भी एफ डैश एक्स होना चाहिए। एफ डैश एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा गया है और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी नोट कर सकते हो। ये हो गया इंटू एफ डैश एक्स, ये कंटिन्यूस स्टेप है, यहाँ पर चाहे तो क्रॉस साइन लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इंटू एफ डैश एफ एक्स। तो चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एफ एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8th क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट को होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, बिकॉज दिस लेक्चर इज द रिवीजन लेक्चर। ये लेक्चर अपना क्या है, रिवीजन लेक्चर। ये सभी सॉल्यूशंस मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये रिवीजन लेक्चर के लिए स्टूडेंट को फिर से यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है कि स्टूडेंट फिर से इसको रिवाइज करें और अपना प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर अदर एग्जाम्स, जो भी कुछ है एग्जाम्स, उसके लिए अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द जनरल फार्मूला। हाँ, तो लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट इजिली। देखो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, यू कैन नोट डाउन। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल्स, अब यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, दैट इज 1 अपॉन, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, तो दिस गिव्स माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 5 becomes 3x square minus 0, तो 3x square ओनली हियर। अब उसको रीअरेंज करके आंसर नोट कर सकते हो। तो दिस क्वेश्चन इज स्मॉल एंड सिंपल इन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर नोट कर सकते हो। इन केस इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, पूछना चाहते हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th। अब ये 9th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। Let y equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x. Differentiating with respect to x, we get derivative of y is dy upon dx equals e raised to d by dx of e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x becomes same e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x by composite function multiplied by d by dx of 3 sin square x minus 2 cos square x. After that, derivative of 3 sin square x minus 2 cos square x you have to find. तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है और कहां पर लिखना है।
तो dy by dx इक्वल्स e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई 3 एज इट इज। यहाँ पर देखो 3 एज इट इज नोट कर लेना है सबसे पहले, और ये 3 नोट करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x is 2 sin x into d by dx of sin x by composite function minus 2, देखो माइनस साइन एज इट इज 2 here, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x 2 cos x into d by dx of cos x। तो ये कंटिन्यूस यहाँ पर नोट कर सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ cos x। अब इसको हम लोग चलिए अगले स्टेप में लेके चलते हैं। तो therefore dy upon dx equals e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x multiplied by, now see this, 3 into 2 that is 6, here sin x as it is, derivative of sin x is cos x, here it is 4, now minus 4, and cos x as it is, derivative of cos x is minus sin x. So we should write here 6 sin x cos x minus 4 cos x into minus sin x. So we see that here minus into minus becomes plus. So this will be plus 4 in the next step. So it is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x multiplied by 6 sin x into cos x plus 4 sin x into cos x. Now adding these two quantities, because they are like terms, they are similar. So it is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x into 10 sin x into cos x. But this 10 sin x into cos x can be written as what? This 10 can be written as 5 into 2 sin x cos x. So it can be written as, but 5 into 2 sin x cos x, this is sin 2x formula in the trigonometry. This is sin 2x formula. 2 sin x cos x becomes sin 2x. So we should write here 5 sin 2x. From here 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. Now see its general formula. Since d by dx of, or derivative of e raised to fx equal to e raised to fx into f dash x. So don't forget to write f dash x here. तो एक्सपोनेंशियल, अभी जैसा कि हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला हियर fx is what here? fx in this question is 3 sin square x minus 2 cos square x means e raised to fx. तो fx की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर सेम टू सेम लिखोगे. fx में भी एल्जेब्रिक, पॉलिनोमियल, फ्रैक्शन एटसेट्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और यू कैन से एफ डैश एक्स मीन्स इसका जो होल इंडेक्स है उसका वापस से यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, रीराइट द डेरिवेटिव फॉर्म, और उसको कंटिन्यूअस बाई चेन रूल आगे बढ़ाते रहना है. जितने भी टर्म्स आते जाएंगे वो सभी का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10th. In question number 10, let y equal to cos square log of x square plus 7. cos square log of x square plus 7. तो ये क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करने के टाइम पर क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान जो रखना है वो हमें अज्यूम करना है कि ये जो होल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर है, ये टोटली फ्रॉम हियर टू हियर इट इज एन एंगल ऑफ कॉस. किसका एंगल है? कॉस के लिए. और उसका पावर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे 2 है, 3, 4, 5, एनीथिंग, एनी पावर दे कैन गिव. तो चलो यहाँ पर स्क्वायर ही आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हम लोग यहाँ पर लेट y इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. ठीक है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन नोट करोगे. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल्स 2 cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. देखो cos स्क्वायर मतलब cos ऑफ, सपोज करो कि ये होल ब्रैकेट जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर है, होल ब्रैकेट एज थीटा. अगर ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा होल स्क्वायर. और जब होल स्क्वायर क्वांटिटी में कोई भी डेरिवेटिव के लिए आता है तो हम लोगों को x रेज टू n की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. We write here dy upon dx equals 2 into cos log of x square plus 7 multiplied by
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई कंपोजिट फंक्शन। तो अब चलते हैं आगे इसके लिए। देखो 2 cos log x square plus 7 from here as it is. Now derivative of cos of log x square plus 7, तो derivative of cos x is minus sin x, so we write here minus sin log x square plus 7। तो अभी जो सिर्फ यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ वो cos के लिए हुआ, तो log x square plus 7, so again composite function into d by dx of log x square plus 7। तो ऐसे ही इस स्टेप को आगे कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर से एक बार देख सकते हो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई कंपोजिट फंक्शन और बाई चेन रूल यू कैन से। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस साइन log x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें इसके लिए कौन सा डेरिवेटिव यहाँ सुटेबल करना है। तो जो भी यहाँ डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7, तो इसका जो सुटेबल फार्मूला है 1/x फॉर्म में है, तो दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू अगेन कंपोजिट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, और यहां पर जाकर के लास्ट डेरिवेटिव का टर्म जो कंपोजिट फंक्शन का टर्म है यहां पर कंप्लीट होता है, बट वी राइट द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट आल्सो। तो dy अपॉन dx इक्वल्स माइनस 2 साइन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस log एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 2x प्लस 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7? 2x प्लस 0। तो ये टर्म को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 0। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी हमें यहाँ पर फाइनल आंसर को रीअरेंज कर लेना चाहिए। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स माइनस 2x, दिस टर्म फर्स्ट हियर, तो माइनस 2x, और यहाँ पर एक थिंग और भी देखनी है कि 2 साइन, देखो इनके दोनों ब्रैकेट के टर्म बहुत ही सेम है, एकदम सेम है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ये भी है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यू नो वेरी वेल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, it is a formula. So first we write here minus sign and then 2x, after that 2 sin log x square plus 7, 2 sin log x square plus 7 into cos log x square plus 7 becomes sin of 2 log x square plus 7। ये लिख सकते हो because of formula 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta। Here theta is log x square plus 7, so we should write here minus 2x into sine of 2 log x square plus 7 in the numerator, and one more remaining term which is in the denominator x square plus 7, so we should write here upon x square plus 7. So see once again dy upon dx equals minus 2x into sine of 2 log x square plus 7 entire upon x square plus 7. Now इट्स जनरल फार्मूला। अब अगर हम लोग जनरल फार्मूला की तरफ चलते हैं तो हमें जो जनरल फार्मूला यहाँ पर मिलेगा वो फार्मूला क्या है? तो उस फार्मूले को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एफ एक्स, क्या लिखोगे यहाँ पर? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स माइनस साइन एफ एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ cos एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एफ एक्स into f dash x, and for these two terms 2 sin log of x square plus 7 into cos of log x square plus 7, तो using this formula 2 sin a into cos a equal to sin 2a, क्या यूज करोगे? 2 sin a cos a equal to sin 2a। तो इस फार्मूले को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फाइनल आंसर को एंट्री किया गया।
ओके, तो यहां पर हम लोग अभी आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, लेट y इक्वल टू tan cos ऑफ sin x। लेट y इक्वल टू tan cos ऑफ sin x। अब देखो tan भी है, cos भी है, sin भी है, तो ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना है, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्म विथ प्रैक्टिस्ड। तो प्रैक्टिस करके अगर जाओगे, यू आर जैसे प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिए, तो इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो कि y इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। तो यहां पर हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शंस, tan, cos एंड sin, लेकिन फर्स्ट जो फंक्शन है वो है tan। तो tan के बाद हमारा जो आता है यहाँ पर, जब सपोज कर लो कि ये पूरा पार्ट है यहाँ पर tan थीटा, अभी के लिए एज्यूम कर लो, या इसको x एज्यूम कर लो तो भी चलेगा कि y इक्वल टू tan ऑफ x। अगर मान लो ओनली tan x होता तो वी नो दैट d by dx of tan x इक्वल टू sec square x। इट इज योर फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x। तो चलिए यहीं से स्टार्ट हम लोग करेंगे, और फार्मूले को साइड में नोट कर लेना चाहिए, d by dx of tan x इक्वल टू sec square x। दिस इज द फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पर अब इसको नोट करने के बाद यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व वेरी केयरफुल्ली। सिंस d by dx of y becomes dy upon dx equal derivative of tan of cos of sin x becomes sec square of cos of sin x। जैसे sec square x, तो इंस्टेड ऑफ x वी राइट हियर cos of sin x, ये फुल टर्म, तो sec square cos of sin x मल्टीप्लाइड बाई d by dx of cos of sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos of sin x, अभी ये कंपोजिट फंक्शन से यहाँ पर आ गया, तो अब इसका जो आंसर है वो अगले स्टेप में नोट करते हैं। तो इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर cos sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos of sin x माइनस sin of sin x into d by dx of sin x again for this sin by composite function। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस sin x, ओनली दिस टर्म के लिए अगर हम लोग डिस्कस करें, ओनली लास्ट टर्म के लिए, कि d by dx ऑफ sin x इज cos x। रिमेनिंग टर्म देखो सेम लिखे गए, सभी सेम है, सिर्फ ये माइनस साइन को फर्स्ट लिखा गया। तो रीअरेंजिंग ऑल टर्म्स एंड राइट डाउन योर फाइनल आंसर। देयरफॉर dy upon dx इक्वल्स माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ sin x इंटू cos x। तो ये रहा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11th, एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज d by dx of tan of fx, d by dx of tan fx equals sec square fx into f dash x, sec square fx into f dash x। This is the general formula for question number 11th or similar questions जिसमें tan of something, this means fx may be anything, trigonometric function, logarithmic function, algebraic function or exponential function, etc. Anything can be done here। तो वो हम लोग उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करते रहेंगे, तब तक उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक उसका लास्ट टर्म डिफरेंशिएशन में नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पर इसका लास्ट टर्म था sin x और वो डेरिवेटिव में यहाँ पर आ गया d by dx ऑफ sin x, मीन्स अभी हमें कंपोजिट फंक्शन का प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x becomes cos x, and then rearranging we get answer here dy upon dx equals minus sec square cos of sin x into sin of sin x into cos x, and this is your formula। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग टिल क्वेश्चन नंबर 11 तक ही स्टॉप करते हैं, क्लोज करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर, और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।